Yes, class 12, the first video uploaded to question number 4.1 to 4.6. Now, so next question 4.7. 4.7 is very interesting questions. I read two long and parallel straight wire A and B carrying current of A. Here A and B, a long straight wire A and B. Okay, now 8 ampere and 5 ampere in the same direction. Here is the 8 ampere and here is the 5 ampere is the same direction. Okay, and same direction and separated by the distance of the 4 centimeter. Here is the distance R is equal to 4 centimeter. Okay, 4 centimeter. Estimate the force on the section 10 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of a wire A. Okay, so there is the applied the force F is equal to mu 0 upon 4 pi and 2I1 and I2 upon RL. This value are applied here. So I1 I2 value are given. I1 and I2 value are given. R is value given and length L is equal to 10 centimeter are also given. So F is equal to mu 0 4 pi into 10 की power minus 7 upon 4 pi. Here is the 2 into 10 की power 8, 2 into 8 into 5 upon 4 into 10 की power minus 2, and here is the 10 centimeter in 10 into 10 की power minus 2. Okay, 10 की power minus 2, 10 की power minus 2 are cancel out. 4 pi are cancel out. F is equal to 10 की power minus 7, 2 into 40 here, and now here is also 4 से टेबल से कट जाएगा 10 times. Now F is equal to 2 into 10 की power minus 5 Newton. Okay, this type question is very interesting regarding the MCQ point of view से. Okay, then there are given the force on coil. Yes, the second point, the force on the 10 centimeter section of the wire. ओके, ये वैल्यूज आपके पास में दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा. मैं डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला आपके पास में दे दिया है. ओके, राइट डाउन 4.8. 4.8 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. ओके, 4.8 4.8 is a closely wound solenoid 80 centimeter long, have a 5 layer. Which layer? 5 layer. 5 layer of the winding of 400 ton each. The diameter of the solenoid is the 1.8 centimeter. If the current carrying is the 8 ampere, estimate the magnitude of the B inside the solenoid near its center. Okay, so here are given the 80 centimeter long, it means L are given 80 centimeter, 8 into 10 की power 80 into 10 की power minus 2 meter. Okay, second point is the 400 ton, small n is equal to 400 tons. Third point is the current carrying, current is the 5 amperes. Current is the 8 amperes, current is the 8 amperes, and solenoid diameter are given. D is the given 1.8 meter centimeter, so 1.8 into 10 की power minus 2 meter, and R is equal to half 0.9 into 10 की power minus 2. Okay, meter. Then find out the magnetical field. B find को करना है, B find करना है, magnetical field find करना है. तो आपके पास जो फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. तो हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स, यस, स्मॉल n की वैल्यू और दे रखी है 5 लेयर. ये कैपिटल n है आपके पास में, नंबर ऑफ लेयर्स है 5 लेयर्स. कुछ अपन चूक रहे हैं, इसमें लिखा है वापस 5 लेयर्स. ओके, तो बी सोलेनॉइड का है, उसको हम फाइंड करेंगे. तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे?
म्यू जीरो एन आई अपॉन एल वाला। ओके, और इसको और भी डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर म्यू जीरो एन आई अपॉन एल पुट कीजिए 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 5 इंटू 400 इंटू 8 ये वैल्यूज दे रखी है, और ये वैल्यूज दे रखी है 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। वैल्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे हम। ओके, सो वेरी सिंपल कंसेप्ट आर हियर। 8 की टेबल्स को कट कर दीजिए 10। ओके, डेसिमल को कट कर दीजिए 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 40 इंटू 5 इंटू 10 की पावर प्लस के 2। ये आपके पास में बन गया, ये हो गया 200 इंटू की 8 पाई 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2। ये आपके पास में वैल्यूज रह गई है। ओके, इस वैल्यूज को आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपके पास में 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 रह जाएगा। 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला रह जाएगा। उसको सब सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिकल फील्ड की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, और मैग्नेटिकल फील्ड के लिए 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। तो ये है 4.8 वाला क्वेश्चन जो सोलेनॉइड के रिगार्डिंग में था, तो उसको आप जो है राइट डाउन कर लीजिए। Yes, 4.9 is very interesting questions. is very interesting. A square coil of side 10 centimeter consists of a n is equal to 20 turns and the carrier a current of the 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of coil takes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetical field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by a coil? Okay, torque को फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्न n इज इक्वल टू आपके पास में 20 दे रखा है, आपके पास में करंट की वैल्यू 12 एम्पियर है। ओके, मैग्नेटिकल फील्ड आपके पास में दे रखा है 0.80 टेस्ला, थीटा की डिग्री दे रखी है 30 डिग्री। ओके, और आपके पास में क्रॉस सेक्शन एरिया, रेक्टेंगल कॉइल है तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी, साइड इनटू साइड। तो एक साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आप L की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड कर दीजिए साइड इनटू साइड की कॉन्सेप्ट से। तो 10 इंटू 10 इट मींस ये आ गया आपके 100 10 की पावर 2, और पीछे क्या दे रखा है सेंटीमीटर, तो अभी सेंटीमीटर लिख लीजिए 10 की पावर 2 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो ये आपके पास में जो आ जाएगा वो वैल्यू 1 मीटर कह देगी। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टॉ इज इक्वल टू हमारे पास में NIAB sin थीटा। ओके, सो n की वैल्यू 20, ये 12 इंटू 1 इंटू 0.80 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू को पुट करेंगे तो 12 इंटू 0.8 इंटू ये 1/2। 2 की टेबल्स इसको कट करेंगे 6 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 120 इंटू 0.80। डेसिमल को रिमूव करेंगे 100 तो 12 की वैल्यू 12 इंटू 8, ये वैल्यू कितनी हो गई 96। ओके, और ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब आपके पास में जो वैल्यूज आ गई है उसको आप चाहें तो इसके अंदर डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक के चांस नहीं रहने चाहिए हमारे पास में, क्योंकि मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो ये 10 की पावर माइनस के 4 होगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 मीटर होगा। मैंने कहा मिस्टेक के चांस नहीं होने चाहिए,
तो यहाँ पर आप 10 की पावर माइनस के 2 लिख लीजिए। ओके, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2, इधर भी 10 की पावर माइनस के 2। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू आपके पास में 0.96 न्यूटन मीटर। ओके, यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो राइट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 4.10। 4.10 दे रखा 2 moving coil meters M1 and M2 having a particular values R1 की वैल्यू, N1 वैल्यू, A1 वैल्यू, B1 वैल्यू, R2 वैल्यू, N2 वैल्यू, A2 वैल्यू, B2 वैल्यू। Determine the ratio of the current sensitivity and voltage sensitivity, both in testing values दे रखी है। तो इस टाइप की वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। बेटा पहले तो करंट सेंसिटिविटी के कॉन्सेप्ट को तो मैंने एमसीजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप डिटेल में रीड करना, डिटेल में वॉचिंग करना, आपकी एवरी पॉइंट करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे। ओके, सो करंट सेंसिटिविटी से रिलेटेड पहले फॉर्मूला हमको बोला है, तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है हमारे पास में, उसको IS से डिनोटेड करते हैं। तो हमारे पास में होता है NAB का जो फॉर्मूला आता है NBA/K, ये फॉर्मूला था, यानी कि नंबर ऑफ टर्न 1 1 1 और 1। और एक और कॉइल है आपके पास में, तो इसको भी एक साइड में जो है कॉइल को I1 मान ले हुए, सपोज यहाँ पर सपोज कर रही है, सारी चीजें सपोज में आ रही है। ओके, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और I2 की वैल्यू को भी N2 B2 A2/K2 करते हैं। ओके, और करंट सेंसिटिविटी में रेशियो फाइंड करना है। इट मींस IS इज इक्वल टू, आपके पास में जो वैल्यूज आती है वो वैल्यूज आती है I2/I1 के रिगार्डिंग में आती है। तो हमारे पास में N2 B2 A2, ओके, और नीचे K2 आ जाती है। फिर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में N1 B1 A1 और ये आ जाती है K1। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आपके पास में आ जाएगा। जैसे कि N2 की वैल्यू है 42, B2 की वैल्यू है 0.50, A2 की वैल्यू है 1.8 × 10 की पावर -3, K1 की वैल्यू है हमारे पास में, K1 की जो वैल्यूज दे रखी है, K1 की जो वैल्यू दे रखी है वो नहीं दे रखी, इसमें K1 कैंसिल आउट होंगे, स्पिन कांस्टेंट 2 मीटर्स। ओके, तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, 2 मीटर्स है, 2 मीटर यानी कि 2, और यहाँ पर K2 की भी 2 इंटू N1 की वैल्यू जो दे रखी है 30, B1 की दे रखी है हमारे पास में 0.25, और इसके बाद में A1 की बचती है 3.6 न्यूटन की पावर -3। ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, और इसको भी कैंसिल आउट कर लीजिए आपके पास में, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए आपके पास में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। और आपके पास में IS की वैल्यू यानी कि करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू जो होती है 1.4, ये करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू रह जाती है। तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम फाइंड करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेम फॉर्मूला, वोल्टेज सेंसिटिविटी में B1 इज इक्वल टू N1 B1 A1/K1 R1, और V2 इज इक्वल टू N2 B2 A2/K2 R2। ओके, इसको भी हम डिवाइड करेंगे, यानी कि VS डिवाइड करेंगे तो V2/V1, और ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो होगी N2 B2 A2, और ये K2 A2, और ये ऊपर चढ़ जाएगी K2 R2 सॉरी, और ऊपर चढ़ जाएगी K1 R1 N1 B1 A1। और जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा VS की वोल्टेज सेंसिटिविटी की, देखिए N2 की वैल्यू क्या थी 42 इंटू 0.50 इंटू 1.10 की पावर -3 इंटू 2 इंटू
R1 की वैल्यू 10। इसी टाइप से यहाँ पर आपके पास में 2 इंटू R2 की वैल्यू आपके आ गई 40 इंटू 0.25 इंटू 3.6 10 की पावर -3 ये वैल्यूज रह जाती है। तो इनको जैसे ही हम सॉल्व आउट करेंगे, देखो सॉल्व आउट हो गया है, 2 से 2 को कट कर दीजिए। ओके, ये वापस कट हो जाएगी 2 टाइम्स। ओके, इसके बाद में जो बचती है ये भी कट हो जाएगी 2 टाइम्स, 2 से 2 कट कर देना, और जो रिमेनिंग बच रही है उस रिमेनिंग वाली वैल्यूज को डिवाइड कर देना। तो आपके पास में वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू का आंसर आ जाएगा 1। कितना आएगा? 1। देखिए करंट सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा आती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो 1 रह जाती है, पीछे ऐसा ही नहीं आएगी। ओके, इस टाइप के फॉर्मूले को जो 4.10 है उसको आप पूरा कंप्लीटली राइट डाउन कर लीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, राइट डाउन कर लीजिए। नाउ 4.11 4.11 जो क्वेश्चन है उसको मैं रीड करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन ले। इन ए चैम्बर इन यूनिफॉर्म आइडेंटिकल फील्ड ऑफ 6.5 गीगाहर्ट्ज, गीगा यानी कि गीगा 10 की पावर -4 टेस्ला इज द मेंटेन एंड द इलेक्ट्रॉन इज shoot into the field with the speed of the 4.8 into 10 की power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron in circle determine the radius of the circular orbit. Yes sir, circular orbit जब भी हम रीड करेंगे तो सर्कुलर रीड को जब ये रीड करेंगे they are created two forces, the centripetal force and Lorentz force. So now in equilibrium case, now the C and Lorentz force L, so mv square upon r is equal to qvb sin theta, and there is created normal field, so theta is also 90 degree and sin 90 is equal to 1 is very interesting point. So mv square upon r is equal to qvb, and now qqr vb are cancelled out, so mb upon r is equal to qb, and then find the radius r is equal to qb upon mb. This formula से हम इसका रेडियस फाइंड कर पाएंगे। सो यदि वैल्यूज को पुट अप करें, देखिए कहीं मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, मिस्टेक की कोई चांस नहीं होने चाहिए। mb स्क्वायर इज इक्वल टू मिस्टेक के चांस हो गए ना बेटा, ये फॉर्मूला उल्टा हो गया। फॉर्मूले के अंदर क्या होना चाहिए? mb अपॉन qb। देखिए ध्यान से। ओके, इस टाइप से फॉर्मूला डिजाइन करेंगे तो वैल्यू को पुट अप करेंगे। हमारे पास में वैल्यूज दे रखी है, जैसे कि किसकी वैल्यू चाहिए? मास 9.1 into 10 की पावर -31, ओके, इनटू वेलोसिटी 4.8 into 10 की पावर 6 अपॉन आपके पास में चार्ज दे रखा 1.6 into 10 की पावर -19, बी दे रखा है आपके पास में 6.5 10 की पावर -4, और जिससे आपको रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो रेडियस की वैल्यू आएगी, ये जो आपके पास में रेडियस की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू 4.2 into 10 की पावर -2 मीटर यानी कि 4.2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। ओके, यस 4.11 से ही रिलेटेड है। ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। ओके, तो 4.12 बीसी के एक्सपेक्ट में हमको करना है, जो फाइंड आउट किया है वैल्यूज को जो फाइंड किया है उस वैल्यूज के आगे चलेंगे। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए 4.11 में कि कैसे वैल्यूज को पुट किया है। माइंड ये बहुत सिंपल सा है, MEV अपॉन EB का फॉर्मूला पुट किया, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक कहीं होनी चाहिए आपसे। सबसे ये एंगुलर वेलोसिटी को क्रिएट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट को हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, एक बार वापस रीड करते हैं, आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या है?
वही सेंट्रीपिटल फोर्स और FL लॉरेंस फोर्स. So mv square upon r is equal to q vb sin theta के लिए 90, v से v cancel, mv upon r is equal to q replaced by electron, so eb. Okay, now v is equal to omega r, very famous relation. So v omega r upon r is equal to eb. Now r cancel, omega is equal to 2 pi f. Which value? 2 pi f. So omega is equal to ep upon m. और ये 2 pi f की वैल्यू को पुट कर दूं तो eb upon m, तो आपके पास में फ्रीक्वेंसी आती है eb upon 2 pi m. ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है. अब रहा आपके वैल्यूज को पुट अप करना. वेरी सिंपल. 1.6 10 की पावर माइनस के 19, 6.5 10 की पावर माइनस के 4, 2, 3.14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. पुट अप वैल्यूज करेंगे तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ रही है, वो आ रही है 18.18 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, जिसको हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 18 मेगाहर्ट्ज. तो राइट डाउन कर लीजिए. ये था 4.12 क्वेश्चंस. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, अब रहा है 4.13 वाला क्वेश्चन रहा है जो आपके लिए लास्ट क्वेश्चंस है. उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है लास्ट वाला क्वेश्चन 4.13. ओके, मैं रीड कर रहा हूँ. उसका ए और बी पार्ट दे रखा है. ए पार्ट को रीड कर रहा हूँ. केयरफुली लिसन. क्या कह रहा है हमसे? In circular coil of the 30 Newton T-side 30 ton and the radius the 8 centimeter carrying a current of the 6 ampere is suspended vertically in uniform horizontal magnetical field of magnitude 1 Tesla. The field like making an angle 60. Okay. If the number of the coil, calculate the magnitude of the counter torque. Now that must be applied to prevent the coil from turn. Okay, there are given various values. First of all, we are small n is the 30, radius r is equal to आपके 8 centimeter. It means 8 into 10 की power minus 2 meters, and current 6 amperes. And vertically a magnetical field 1 Tesla. Okay, theta is equal to 60 degree. तो sin 60 वर्टिकली है. sin 60 की वैल्यू बताइए. कुछ बताएंगे sin 60 की वैल्यू? कौन बताएगा sin 60 की वैल्यू? √3/2. वेरी गुड. हाँ, ऐसे कुछ बोलते रहिए. ओके, ये दे रखिए. और क्या दे रखा है इसके अंदर? बस. तो τ इज इक्वल टू हमारे पास में NIAB sin थीटा का फॉर्मूला है. मालूम है आप सबको? क्योंकि वर्टिकली जब भी कोई कॉइल रोटेट होती है तो यही फॉर्मूला जनरेट होता है यहाँ पर. ओके, तो n की वैल्यू दे रखी है 30. रेडियस r इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से हम निकाल लेंगे. तो रेडियस है, सर्कुलर कॉइल है, पाई आर स्क्वायर, और पाई 3.14 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर. ये वैल्यूज यहाँ आ जाएगी. ये कैपिटल N है, नंबर ऑफ टर्न. सो τ इज इक्वल टू 30, I इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 1. ओके, A इज इक्वल टू 3.14 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू sin 60. तो sin 60 आपकी वैल्यूज है, पुट कर देना. तो आपके पास में τ इज इक्वल टू 180 इंटू 1 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू √3/2. इस वैल्यू से आप टॉर्क क्यू फाइंड कर सकते हैं. 2 की टेबल से इसको कट कर दीजिए तो 90s आ गया. 90 इंटू 64 इंटू 3.14 इंटू ये वैल्यू 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4. तो टॉर्क क्यू की वैल्यू को आप जो है सॉल्व करेंगे तो टॉर्क क्यू की वैल्यू आपके पास में 3.1 न्यूटन मीटर.
न्यूटन मीटर, ये वैल्यूज आप फाइंड कर देना। नाउ बी पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बी पॉइंट कह रहा है वी आर यू आंसर चेंज इफ ए सर्कुलर कॉइल in A replay by the planar coil some the irregular plane of the enclose the same area। आंसर रहेगा नो। कोई भी एरिया की वजह से कुछ भी जो है आपके the answer would be not be changed because above the formula of the torque return a planar loop of any shape, चाहे वो रेक्टेंगल शेप हो चाहे वो सर्कुलर शेप हो, किसी के अंदर भी ये वर्किंग कर सकता है। ओके, सो थैंक यू। क्लास 12 की एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको दे दिए हैं, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर देना। ओके, थैंक यू।